Welcome to the first lecture of romantic poetry. In this poetry, we'll learn Wordsworth's poem Resolution and Independence. The background of the poem, the events in this poem refer to a walk the Wordsworth took through the Lake District, probably on 26 September 18. In a note to Isabella Fernwick, Wordsworth recalls this old man I met a few hundred yards from my cottage, जिसमें वो अपने एक सफर को याद करता है जिसमें अपने कॉटेज से कुछ यार्ड के फासले पे गया। मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हुई थी, बाहर जो परिंदे चहक रहे थे, जो बतख के बच्चे हैं अपने गोल के साथ फिर रहे थे। तो वहाँ उसकी एक पर्सन से मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बारे में बात करता है। और इस पोइम को आमतौर पे द लीच गैदरर के नाम से जाना जाता है, लेकिन किसी भी रिटन बुक में उसका ये नाम नहीं आया हुआ। आमतौर पर मशहूर है द लीच गैदरर, लेकिन किसी भी रिटन बुक में इसका ये नाम नहीं है, प्रिंटेड बुक में नहीं है। सो हम इसको इसी नाम से याद रखेंगे, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। So we are starting from the first lines of the this poem. There was a roaring in the wind all night. Sorry, रात हवा शोर करके. The rain came heavily and fell in floods. रात को शदीद बारिश आई और floods की शक्ल में बह गई. But now the sun is rising, calm and bright. But now there is no cloud outside and sun is calm and bright. The birds are singing in the distant woods. In the distant trees, some birds are singing over his own sweet voice and stalked of broods. The birds are singing in their sweet voice, and some doves also have with their flocks are moving over here. The jay makes answer as the magpie chatters whenever any bird is giving his sound. Some other bird also answers him by giving another sound. They are singing in competition, and all the air is filled with pleasant noise of waters, and there also noise of the water that is passing through over here. All things that love the sun are out of doors. So because after the rain there is sun that is most clear and bright. All things that love that this sun all over here to see the sky. The sky rejoices in the morning's birth, and sky is happy with the birth of the morning. The grass is bright with raindrops on the moors. In the pastures, in the grassy ground, there is grass that is bright with the drops of the rain. The hare is running races in her midst, and there is some hares that are running in her midst with happiness, and with her feet she from the fleshy earth. She is splashing the water by running. जब पानी के अंदर घास में पानी हो उसके ऊपर कोई जानवर कोई खरगोश वगैरह भाग रहा हो तो जो छींटे उठते हैं, fleshy earth rises a mist that glittering in the sun. और वहां से कुछ मिस्ट ऐसी जब वो जोड़ते हैं ग्रासी ग्राउंड में जिसके अंदर पानी है, वहां से हल्की धुंध टाइप नजर आती है जो स्काई में सन की रोशनी में चमकना शुरू हो जाती है। रन विद हर ऑल द वे वेदर शी डोथ रन, और वो उसके साथ साथ भागती रहती है। ये जो मिस्ट है जाना हो जाता है। वाज अ ट्रैवलर देन अपॉन द मोर, मैं भी उसी घास के ग्राउंडों में क्या था, एक ट्रैवलर था। आई सॉ द हेयर दैट raced about with joy, and I'm observing, I'm seeing, I'm looking towards here. I heard the woods and distant waters roar, and there are some roars, some sound of the water that is falling from high to low side. Or heard them not, as happy as a boy. I am uh, observing and hearing the noise of the air and noise of the water like a happy boy. The pliant season did my heart inquire, my old remembrance went from me wholly, and all the way of men so vain and melancholy. जो पहले मेरे अंदर खुशी होती थी वो अब चली गई है। अब मैं थोड़ी उस एज में आ गया जिसमें हल्का सा वेन एंड मेलंकली यानी थोड़ा सा गम भी आ जाता है। बट एज इफ समटाइम्स
transit from the might, but as sometimes transit, there is sometimes some chances from the mighty of joys in minds that can so farther go. और जब जॉयज जो माइंड में ऐसे होते हैं जो साथ ही रहते हैं एज हाई एज वी हैव माउंटेन इन डिलाइट, और इतने हाई होते हैं जितने खुशी में हम पहाड़ियों पर चढ़ जाते हैं। जितनी खुशी हमारी पहाड़ियों की तरह ऊंची होती है, इस तरह वो भी जॉयज जो है हमारे अंदर बहुत ऊंचे होते हैं। इन अवर डिजेक्शन डो वी सिंग एज लो, to me that morning did it happen so, and fears and fancies thick upon me came, fears और fancies ने मुझे कवर कर लिया चारों तरफ से, मुझ पर थिक चादर की तरह आ गए हैं। dim sadness and blind thoughts I knew not nor could name, लेकिन ये सैडनेस डिम सी सैडनेस है या ब्लाइंड थॉट्स है जो मुझे समझ नहीं आ रही क्या है, ना मैं उनको कोई नाम दे पा रहा हूँ। आई हेयर द स्काई लॉर्ड वॉबलिंग इन द स्काई, मैं सुन रहा हूँ स्काई को, स्काई के अंदर किसको, लार्क वेबलिंग, परिंदों को, जो स्काई लार्क एक परिंदे का नाम है, वो वेबलिंग कर रहा है इन द स्काई, एंड आई बिथॉट मी ऑफ द प्लेफुल हियर, और मैं सोच रहा हूँ खेलते हुए खरगोश के बारे में। इवन सच अ हैप्पी चाइल्ड ऑन अर्थ एम आई, कि मैं भी कभी ऐसा अच्छा ऐसा ऐसा हैप्पी बच्चा था यहाँ पे। इवन एज दीज ब्लिसफुल क्रिएचर्स डू आई fear, far from the world I walk and from all care, मैं अपने वर्ड से दूर जा रहा हूँ और तमाम केयर्स को साइड पे रख के, बट देयर में कम another day to me, और एक और दिन मेरा आ गया, solitude pain of heart distress and poverty, these all things are on the other hand। एक तरफ ये खुशी है, दूसरी तरफ ये चीज़ें हैं जो मुझे नजर आ रही हैं। My whole life I have lived in pleasant thought as if life's business were a summer mood, मैंने अपनी तमाम लाइफ इतनी प्लेजेंट थॉट्स में गुजारी है जैसे मेरी तमाम की तमाम जो बिजनेस है, तमाम की तमाम लाइफ है, वो समर मूड में गुजरी है। एज इफ ये उनका मौसम हमारे कंट्री का मौसम जो बहुत मुख्तलिफ है, वहाँ जो है समर को वो खुशी में लेते हैं कि समर में वहाँ पे इतनी ही सर्दी होती है जितनी हमारे यहाँ विंटर में होती है। As if all needful things would come unsought, so genial fat, still rich in genial good. But how can he expect, though, that others should build for him, sow for him, and at his call love him, who for himself will take no heed at all? सो ये तमाम चीज़ें हैं जो मेरे इर्द गिर्द हैं, कभी खुशी हैं कभी गम है, मैं इनके बारे में क्या करूँ, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या सोच रहा हूँ। I thought for Chatterton, the marvelous boy. मैं चैटरन के बारे में सोच रहा हूँ जो अजीम लड़का है। The sleepless soul that perished in his pride, वो sleepless soul है जो pride में perish खुश हो रहा है। Of him who walked in glory and in joy, उनके लिए वो जब भी चलता है ग्लोरी और जॉय में चलता है। Following his plow, और उसके साथ उसका क्या है, हल है। Along the mountain side, वो पहाड़ों के साथ जा रहा है। By our own spirits are dived, और वो अपने स्पिरिट से भरा हुआ है। We fight in our youth began in gladness, हम पोइट जो हैं वो भी अपने यूथ में ऐसे ही ग्लैडनेस फील करते थे, बट देयर ऑफ कम इन द एंड डिस्पोंडेंसी एंड मैडनेस, लेकिन उस हैप्पीनेस का एंड अब जो मैं देख रहा हूँ डिस्पेंडेंसी एंड नो। Now, whether it were by peculiar grace, a leading from above, or something given, yet it befell that in this lonely place, when I with these untoward thoughts had striven beside a pole, bare to the eye of heaven, a sigh man before me, unaware is the oldest man he seemed that awoke were grey hairs। वो कह रहा है कि मैं इसी खुशी में जा रहा हूँ तो आगे मुझे एक पर्सन मिलता है ग्रे हेयर्स वाला, वो अनअवेयर है मेरे बारे में लेकिन मैं उसे देख रहा हूँ। एज अ ह्यूज स्टोन इज समटाइम्स सीन टू लाई, ऐसा लगता है जब बड़ा सा पत्थर कहीं पड़ा हुआ हो, कट ऑन द बेल टॉप ऑफ एन इमरेंस, उसके सर ऐसे लग रहा है जैसे उसके सर पे एक बड़ा सर के बजाय एक बड़ा पत्थर हो जिसके ऊपर घास फूस उगा हो। बेल टॉप ऑफ एन
eminence. Wonder to all who do the same speak, but what means it could thither come, and whence so that it seems a thing endued with sense, like a sea beast crawled forth that on a shell. तो सी बीस्ट की तरह लग रहा है जिसने अटैक कर दिया हो इस पे शेल्फ पे ऑफ रॉक और सैंड रिपोसिट्स देयर टू सन इटसेल्फ जो डायरेक्ट सूरज को रिफ्लेक्ट कर रही है सच सेम दिस में नॉट अलाइव नॉट डेड ये बस ऐसा लग रहा है नॉट अलाइव नॉट डेड नॉर asleep in his extreme old age ना ही वो लग रहा है सो रहा हो his body was bent double feet and head उसकी बॉडी क्या थी डबल हो चुकी थी वो ज़्यादा झुक के चल रहा था फीट एंड हेड उसके फीट एंड हेड करीब करीब थे कमिंग टुगेदर इन लाइफ पिलग्रिमेज उसके फीट एंड हेड करीब आ गए थे जिंदगी के सफर में एज इफ सम ड्यू constraint of pain or rage of sickness felt by him in time long past ऐसा लग रहा है उसे पेन और सिकनेस से बहुत पहले ले लिया था a more than human weight upon his frame had cost ऐसा लगता था कि उसके फ्रेम पे उसके कुव्वत बर्दाश्त से ज्यादा वजन डाला गया हो himself he dropped limbs body and pale face और उसके पास ही था क्या था he dropped limbs body and pale face उसके पास ही उसकी टांगे बॉडी और उसका पीला चेहरा था upon a long grey step of shaven wood और वो एक ग्रे स्टेप पे था जहाँ पे वुड ही वुड थी एंड स्टिल एज आई ड्रीव नियर विद जेंटल पेस मैं आराम आराम से उसके करीब गया उसकी जगह के करीब चला गया अपॉन द मार्जिन ऑफ दैट मोरिश फ्लड जब मैं करीब पहुंच गया किसके उस शोर करते हुए दरिया के मोशनलेस अ क्लाउड द ओल्ड मैन स्टूड अचानक ही वो बंदा बगैर मोशन के बगैर तेजी के खड़ा हो गया that hears not the loud winds when they call and moves all together if it move at all. और वो उससे तेजी से खड़ा हुआ जितनी अचानक जो है हवाएं इकट्ठी होकर खड़ी होती हैं. At length himself unsettling he the pond steered with his staff and fixedly did look upon his muddy water which he conponed as if he had been reading in a book. और उसने ऐसे देखा ऊपर को जैसे वो किसी किताब को पढ़ते पढ़ते ऊपर को देखता है एंड नो स्ट्रेंजर्स प्रिविलेज आई टुक फिर मैंने एक जो है स्ट्रेंजर नावाकफ वाली निगाह उस पर डाली एंड ड्राइंग टू हिज साइड उसकी तरफ बढ़ने लगा टू हिज साइड डिड से उसे कहने वाला था दिस मॉर्निंग गिव्स अस प्रॉमिस ऑफ अ ग्लोरियस डे कि आज का दिन बहुत शानदार होगा. A gentle answer did the old man make, in courteous speech which forth he slowly drew. उसने आहिस्ता से उसका जवाब दिया लेकिन courteous speech थी. आवाज आहिस्ता थी लेकिन उसके आवाज में courtesy थी. And him with further words I thus bespeak. What occupation do you there परसों आप यहाँ कौन सा काम करते हैं दिस इज अ लॉन्सम प्लेस फॉर वन लाइक यू तुम्हारे जैसे पर्सन के लिए ये एक अकेली जगह है फिर ही रिप्लाइड अ फ्लैश ऑफ मिल्ड सरप्राइज उसका जो जवाब था वो सरप्राइजिंग था ब्रोक फ्रॉम द सेबल ऑफ हिज येट विविड आईज उसने अपने आधी बंद होती आईज से मुझे जवाब दिया हिज वर्ड came feebly from a feeble chest, but each in a solemn order followed each with something of a lofty utterance, this choice word and measured phrase and above the reach. तो उसका जवाब दिया उसके जवाब की डेप्थ और उसके जवाब में जो फ्रेज की मेजर्स थी वर्ड्स की मेजर्स थी और मकसद को पा लेने की जो मेजर्स थी वो बहुत जबरदस्त ऑफ ऑर्डनरी मैन अ स्टेटली स्पीच एक ऑर्डिनरी मैन वो लग रहा था लेकिन उसके बोलने का अंदाज आता है जैसे वो स्टेट का पर्सन बोल रहा हो सच एज ग्रेव लिवर्स डू इन स्कॉटलैंड यूज बिल्कुल वैसा ही उसका जिगर था जैसे स्कॉटलैंड में होता है रिलीजियस मैन हु गिव टू गॉड एंड मैन देयर ड्यूज और रिलीजियस मैन थे जिन्होंने गॉड और एक दूसरे को ड्यूज दिए he told that
To these waters he had come together, lychees being old and poor. मतलब मैं इन पानियों के पास आया था लीचीज को उठाने, फल उठाने के लिए, लेकिन यहीं पे मैं ओल्ड भी हो गया, पुअर, एम्प्लॉयमेंट hazards and wearisome, wearisome, and he had many hardship to endure. उसके बाद से भी बहुत से वाक्य थे हार्डशिप के सुनाने वाले. From pond to pond he roamed, एक चश्मे से दूसरे चश्मे तक जाता रहा. From moor to moor, एक चिरागाह से दूसरी चिरागाह तक जाता रहा. Housing with God's good help, वो अल्लाह की मदद के अलावा रहता रहा. By choice और chance, ये नहीं पता चॉइस पे रह रहा था चांस पे. एंड इन दिस वे he gained an honest मेंटेनेंस, इस तरह उसने अपने आप को मेंटेनेंस रखा, लेकिन ऑनेस्ट वे में. टॉलमैन स्टिल टू टॉकिंग बाय माय साइड, बट नाउ हिज वॉइस टू मी वाज लाइक अ स्ट्रीम, scare here nor word from word could I divide. उसकी आवाज़ अब जब स्ट्रीम की तरह थी, और स्कैरी हियर बहुत मुश्किल से मैं उसे सुन रहा था. अल्फाज के साथ अल्फाज से मैं उन्हें अलहदा नहीं कर पा रहा था. एंड द होल बॉडी ऑफ द मैन डिड सीम, उसकी बॉडी भी ऐसी थी, लाइक वन whom I had met विद इन अ ड्रीम, ऐसा लगता है जैसे मैं ख्वाब में उससे मिला हूँ. और लाइक अ मैन फ्रॉम सम फार रीजन सेंट, ऐसा लगता है कहीं दूर से आदमी भेजा गया हो. टू गिव मी ह्यूमन स्ट्रेंथ बाय एडमोनिशमेंट, और ऐसा लगता है जैसे इसके बाद वो स्ट्रेंथ हो जो उसे मिली हुई हो. माई फॉर्मर थॉट्स रिटर्न द फ्यू दैट किल्स, और मेरी पहली जो उसके बाद थॉट थी कि ये गरीब सा बंदा या क्या करता है चेंज हो गई. होप दैट इन अनविलिंग टू बी फेड, और मैं समझ लिया कि वो अनविलिंग है टू बी फेड. कोल्ड पेन एंड लेबर एंड ऑल फ्लैशी इल्स, उसे तमाम ठंड, पेन और तकलीफ जो मुशक्क़त थी उसने तमाम वो बीमारियाँ लगा दी थी जो गोश्त गोश्त के इंसान को लग सकती हैं. एंड माइटी पॉइंट्स इन देयर मिजरी डेड, और एक माइटी पॉइंट अपने मिजरी डेड की तरफ जा रहा था. Perplexed and longing to be comforted, my question eagerly did I renew. How is it that you live, and what is it you do? तुम कैसे रहते हो, क्या करते हो? He with a smile did then his words repeat, and said that gathering lychees far and wide, यहाँ वहाँ से मैं लीची इकट्ठी करता हूँ. We traveled sighing thus about his feet, और वो यहाँ वहाँ कहते हुए साथ हल्का सा उसने चल के भी दिखाया. The water of the pool where they abide, और जो pools के पानी है उनके साथ वो रहता है. Once I could meet with them on every side, मैं इन pools में जो पानी है उनको हर तरफ से मिलता हूँ. But they have dwin- dwindled long by slow decay, लेकिन ये आस्ता आस्ता डिके की तरफ जा रहा है. Yet still I preserve and find them where I may, और मैं फिर भी अपने आसपास पानी के चश्मे को ढूंढ लेता हूँ. I'll think of the leech gatherer on the lonely moor, और मैं सोच रहा था उस लीची इकट्ठी करने वाले पर्सन के बारे में जो अकेला इस चरागाह में था. While he was talking thus, the lonely place, the old man's shape and speech all troubled me. In my mind's eye I seemed to see him face. तो मैं उनके दरमियान जो मेरा उसके दरमियान जो फासला उसे देख रहा था. अबाउट द वेरी मोर्स कॉन्टिन्यूअली, और इस गीले घास पर मुसलसल वैंडरिंग अबाउट अलोन एंड साइलेंटली, वो घूम रहा था अकेला और खामोशी से. Why all these thoughts within myself pursued he, having made a pause the same discourse renewed, उसने थोड़ी देर रुका और अपनी डिस्कोर्स को, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया. And soon with this the other matter blended, फिर उसके बाद कुछ और मैटर भी उसने डिस्कस किए. Chiefly uttered with dem demeanor kind, उसने बहुत खुशी से अच्छे तरीके से वो बातें बताई. But straightly in the main, and when he ended I could have laughed myself to scorn to find in that disrepute man so fine a mind. God said I, be my help and stay secure. God said I, be my help and stay secure. अल्लाह ने कहा कि आए मैं, और फिर वो उसके बाद रहा और सिक्योर रहा. दैट्स एंड ऑफ दिस पोएम. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर.